Hello, dearly beloved. Welcome to this Twin Flame Energy Check-in. We are here to see what are the energies presiding the 11/11 portal tomorrow. Day after tomorrow. I'm sorry, not tomorrow. Day after tomorrow. So I just felt like coming on and checking what is the energy around the 11/11 and what do we need to know, what do we need to be prepared for, what do we need to be mindful of, because the 11/11 portal is especially very important, significantly important for divine counterparts, for people who are on the twin flame journey, because it brings in lots of rebalancing energy. It brings in an energy of basically allowing both polarities, both divine counterparts, to come on a same scale, right? So there is a great balancing energy between divine counterparts around the 11/11 portal. Many of the twin flames come into contact, or they have some sort of a significant moment on 11/11 portal. Many of you sort of like have that opportunity to meet your divine counterpart, or in general the energies are such that a bridge is created between divine counterparts, and you feel this very palpable connection with your twin flame, right? So it's a very important portal day after tomorrow. So I'm just seeing what are the energies around 11/11 and what is it that we need to know. What is it that we need to know towards the portal that is upcoming? Bottom of the deck is oneness. Lovely, oh gosh, I love this card, and especially for what it stands for. I really love that. Bottom of the deck is no, wait, postpone, pause, say no. So something that you might be thinking about, dear one. I'm feeling like in the collective there's a very important decision that you need to take, or there's a specific action that you're wondering to take, and you're thinking in your head, should I take it, should I not take it? So right now there is a significant answer coming out that no, please postpone it. As for now, do not take that action, because it's not going to bear fruitful results. It's not in your highest possible alignment as of now, as you're not ready to receive what you asked for. I repeat, you're not ready to receive what you asked for, and hence you must wait, you must give yourself time. So allow yourself to be patient, pause, say no, or just wait, right? Just wait, and after a couple of months or so, you might be ready to take that action, to take that step forward, or to make that move. This might be towards your person, or it might be otherwise in your journey, in your life as well. Bottom of the deck is starfish, intuition, listen to your soul's truth, think less and feel more. So with these portal energies, I do believe, and this is a pentacle star, okay, that is coming up. So I do believe that somehow this is also reminding me of a Nordic star that I just came across this morning. So it's like facing your true north. So when you align with your intuition, with your higher guidance, with what your higher self is bringing to you, you face your north star. You actually align with that which is meant for you in the highest possible reality. So you are being asked to listen to your soul's truth. What is your soul calling you out to? What is the action that you need to take? If you are required to be patient, if you are required to be mindful, if you are being asked to choose joy, happiness, to look at the bright side of things, listen to your soul's truth. What is it that your soul wants and desires? So think less and feel more. You're being asked to get out of your mind. Many of us are in the mind, caught up in the head, caught up in our thoughts constantly, caught up in what happened in the past, and caught up in what is to come forward, and thus we lose our grounding, we lose our presence, and thus we have this disconnect. We don't know what is going on, and then we seek answers, we want sessions, we want to talk to people who are going to bring us back into alignment. But if you follow your intuition, if you just simply think less about what happened,
what anyone said, what anyone did, or what you are going to do, what someone is going to do or not do in the future. Bring yourself in the now moment. When you are in the now moment, everything is taken care of, everything is unfolding on its own. There is no need to worry, there is no need to be worried about anything or anyone, because just like the breath, it's like coming, going. You are not pumping your lungs, you are not pumping your heart in order to purify your blood, isn't it? You are not making the food digest. Your stomach is doing that for you, right? So if all of these major important functions are carrying on their own, there is a higher power that is taking care of you, right? So trust it, allow it, it's all happening on its own, right? So what do we need to know for the 1111 portal? There's a lot of worry, like I mentioned. Most of us are in our head कि मैं जर्नी पे सही जा रही हूँ कि नहीं, क्या मैं सही चीज़ कर रही हूँ कि नहीं, सही काम किया कि नहीं, सही एक्शन लिया कि नहीं, मैं अपने ऊपर काम इनर वर्क कर रही हूँ कि नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो उसको लेके भी चिंतित हो रहे होंगे आप शायद कि कहीं इससे मेरा यूनियन डिले तो नहीं हो जाएगा, यू नो. और यू मे बी वरिंग अबाउट योर मैस्कुलिन, व्हाई आर दे नॉट टेकिंग एक्शन, व्हाई आर दे नॉट कमिंग टूवर्ड्स मी, व्हेन दे फील दिस पुल, व्हेन दे फील दिस मैग्नेटिक एनर्जी, व्हेन दे फील दिस कनेक्शन, वो स्टेप क्यों नहीं ले रहे, राइट? या वो मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, वो साइलेंट क्यों है, वो उन्होंने अभी भी मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, वो इग्नोर मुझे क्यों कर रहे हैं, right? So all of these things might be causing worry within you, which is what, which is you being in your head, being in your mind. ये सारे thoughts जो हैं वो कहाँ conjure up होते हैं? हमारे head में, हमारे brain में conjure up होते हैं. And what do these thoughts lead us to feel? They lead us to feel low. हमारी वाइब्रेशन गिरा देते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाह रहे हैं. हमारे अंदर एक नीडीनेस की एनर्जी है, क्रेविंग एनर्जी है, एक क्लिंगिंग एनर्जी है, चेजिंग एनर्जी है, जिससे हम चाह रहे हैं हमारे पर्सन हम पे ध्यान दें, या हमारा यूनियन कब हो, या हम कब फिजिकल में साथ में आएंगे, कब तक और वेट करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ों को लेकर आप वरी कर रहे हैं. हो सकता है आप में से कई लोगों की शादी की उम्र है, तो आपके घर से प्रेशर आ रहा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को भी वंचित रख रही हूँ, यू नो, बाय नॉट चूजिंग टू गो विथ सम अदर पर्सन, राइट? तो ये सारी वरीज हैं जो आपके माइंड में क्रिएट हो रही है. बेसिकली ऑल ऑफ योर वरीज आर क्रिएटेड विद इन योर माइंड. सो व्हेन यू कम इन टू स्टिलनेस, जब आप अपने माइंड को क्लियर कर देते हैं, एक ऐसे स्टेट में ले आते हैं जब आप थॉट्स सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं अपने थॉट्स को, यू आर नॉट बिकमिंग योर थॉट्स. थॉट्स तो कई सारे आते हैं दिन में, राइट? बट हम अफेक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उस थॉट को सच मान रहे हैं, हम उस थॉट को समझ रहे हैं कि हाँ यही सच है, कि शायद मेरे पर्सन जो है मुझे प्यार नहीं करते, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझते, या मुझे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अहमियत नहीं दे रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम सच मान लेते हैं कि आई एम नॉट इनफ, मे बी देयर इज सम फॉल्ट विद इन मी, बट इट सिंपली इज़ अ थॉट. इट सिंपली इज़ अ थॉट, इट कम्स एंड इट लीव्स, राइट? तो जब आप अपने थॉट्स को, अपने मेंटल पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हैं, बीइंग इन अवेयरनेस, बीइंग एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, बीइंग अ विटनेस, एक साक्षी भाव से जब आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड में क्या चल रहा है उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो यू बिकम अ लिटिल बिट मोर माइंडफुल दैट नो, दिस इज़ अ थॉट, आई एम नॉट माई थॉट, आई एम नॉट माई थॉट, आई एम नॉट माई बॉडी. ठीक है? देर इज़ एन एनर्जी ऑफ लॉयल्टी. तो अभी स्पेसिफिकली आई एम फीलिंग ये फेमिनिन्स के लिए है कि फेमिनिन्स, यू नीड टू बी लॉयल टू योर पर्सन राइट नाउ ऑन दिस जर्नी. आप ऐसे मोड में होंगे जहाँ पे यूनिवर्स आके ना आपको वो कैरेट दिखा रहा है ना, या वो टॉफ़ी दिखा रहा है कि यू नो देर इज़ दिस परफेक्ट मैच फॉर यू एंड यू कैन स्टिल गो आउट एंड चूज़ एनीबडी दैट यू वांट. और आपका एक परफेक्ट डिज़ायरेबल जो पार्टनर है, जो एक भूमिका है, वैसी सेम भूमिका का व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो रहा होगा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाई एम आई वेटिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मी, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, राइट? पर यदि आप इस पर्सन को परस्यू करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका यूनियन जो है वो डिले होगा.
तो कॉन्शियसली अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको पाथ से नीचे लेके जा रहे हैं, तो आप अपना जो है आउटकम को डिले कर रहे हैं, खुद ही डिले कर रहे हैं. सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू स्टे लॉयल टू व्हाट यू वांट, टू व्हाट यू सी, टू व्हाट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स, and in that your person is also going to reflect that back to you, right? By choosing you, by having eyes for no one else but you. आप ये देखिए ना कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे लॉयल हो, आपसे डिवोटेड हो, पर हम खुद दूसरी तरफ देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? तो why would your person choose you? Why would your person be devoted to you, to this connection? They wouldn't be, right? They will just simply mirror you. आप कहीं और भाग रहे हैं, वो भी कहीं और भाग रहे हैं, वो भी अपने पुराने सिचुएशंस में अभी भी फंसे हुए हैं, अपने हो सकता है कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल गए, फिर किसी और के साथ में चले गए, राइट? तो ये सारी चीज़ें ना, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर माइंडफुल दैट योर पर्सन इज सिंपली मिररिंग टू यू व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट विद इन योर सेल्फ, वेयर यू नीड टू ब्रिंग मोर लव टू योर सेल्फ, राइट? तो अगर आप खुद से लॉयल होंगे, यदि आप गॉड से लॉयल होंगे, इस जर्नी से लॉयल होंगे, तो आपके पर्सन को भी लॉयल होना ही होगा. बिकॉज वाई? दे आर योर एनर्जेटिक मैच. वो आपके एनर्जेटिक मैच हैं, वो आपको पूरी तरीके से मिरर करते हैं, राइट? एंड इन दैट दे विल ऑल्सो चूज टू बी लॉयल विथ यू. दे ऑलरेडी आर, दे होल्ड दिस लव. उनको पता है कि लव इतना स्पेशल है, ये बॉन्ड, ये कनेक्शन इतना स्पेशल है, बहुत ही हाई लेवल का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपके साथ में शेयर करते हैं, राइट? तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ देम कमिंग इनटू देयर ओन पावर. एंड लुक एट दिस, मैस्कुलिन्स आर रेडी टू रिस्क इट ऑल. ये कार्ड कल भी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, बट ये बहुत ही एक रिस्की सिचुएशन है आपके पर्सन के लिए. प्रॉबेबली आई एम फीलिंग दिस कार्ड मोर फॉर द मैस्कुलिन्स. और ये देखिए, ये जब आप लॉयल होंगे, अपने पर्सन के साथ में अलाइन होंगे, योर पर्सन इज गोइंग टू गेन दैट करेज, they are going to gain that power to move forward, move closer towards divine, right? To ascend that ladder and to choose this connection, to choose this spiritual bond, to choose this path. ठीक है? तो ये पावर है आपकी लॉयल्टी का. आपकी लॉयल्टी ऐसे बेकार थोड़ी जा रही है, राइट? एंड वी टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव, सो यू आर राइट हियर नाउ टू लिव इट. यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, इजंट इट? ठीक है? तो अपने आप को डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, बिकॉज योर सोल डिजायर्स दिस कनेक्शन, दिस यूनियन विथ योर डिवाइन काउंटरपार्ट इन द फिजिकल रैल्म, राइट? और ये इसके आप अगर नकारेंगे तो आप खुद ही को सफरिंग में डालेंगे, खुद ही को इल्यूजन्स में पुश करेंगे, खुद ही के ऊपर पेन को इनवाइट करेंगे, राइट? और जितना हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, जितना हम जो भी डिवाइन हमको दिखा रहे हैं, जितना हम अपने अंदर लेते जाते हैं, उतना हम फ्लो स्टेट में रहते हैं, उतना ईजिली हम कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई उससे ईजिली आप ग्लाइड कर जाओगे. वाई? बिकॉज यू नो दैट यू आर लॉयल टू योर पर्सन, यू आर लॉयल टू दिस जर्नी, यू आर लॉयल टू डिवाइन एंड फॉर वॉट डिवाइन हैज़ चोजन फॉर यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ ऑल. ठीक है? तो जो भी डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया, आप उसके साथ में आप संग चल रहे हैं, है ना? यू आर ट्रस्टिंग डिवाइन, यू आर सरेंडरिंग टूवर्ड्स डिवाइन, एंड थ्रू दैट योर पर्सन गेन्स द करेज. द मैस्कुलिन, what is the masculine here to do? The masculine here is here to step up, you know, to evolve, to move out of earthly foundations, physical restrictions को break करके वो divine को seek करते हैं, and through that वो feminine को भी recognize करते हैं, उनकी awakening होती है, right? तो your masculine is going to risk it all and come forward towards you, because look at this divine union. This is what you are meant for. Both of you are separately meant to walk your way. हो सकता है ना अभी आप सोच रहे हो कि यार इतना ही सब अच्छा है, इतना ही प्रेम है, इतना ही सब कुछ है, दी भी रोज़ बोलती रहती है, इतने अच्छे बोल बोलती रहती हैं, बट मुझे फिजिकल में तो कुछ होते नज़र आ नहीं रहा है. और अगर इतना ही प्रेम होता तो वो सामने आके बोल क्यों नहीं रहे, क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे, या अपने दिल की बात शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने अपने इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है और अकेले चलना होगा, राइट? जब आप सॉलिट्यूड में होते हैं तब आप पूरी तरीके से खुद के साथ में होते हैं. वो सारे फियर्स आपके ऊपर आते हैं, इल्यूजन्स, शैडोज आपके ऊपर आती हैं, ख़राब से ख़राब एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी का ऊपर आएगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बट अकेलेपन में आप उसको प्रोसेस करना सीख जाते हैं. अपनी खुशी खुद में ढूंढने लगते हैं आप,
है ना। अपना गम भी जो है आप खुद के साथ बांटना सीखते हैं, आप किसी और को ढूंढ नहीं रहे हैं कि जो मेरी कमी पूरी करे। वो जो कमी है आपके अंदर वो आप डिवाइन लव से पूरी करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं डिवाइन आपको इस बात पे इतनी सारी बार दिखाएंगे कि देख तेरे को बुरे से बुरी स्थिति में मैंने रखा और तेरे साथ में कोई नहीं था, मेरे अलावा तेरे साथ में कोई खड़ा नहीं था। ठीक है, तो जब आप ये रियलाइज़ करते हैं, जब ये ट्रूथ डॉन होता है आपके अंदर कि ओ गॉड, मेरे साथ में मेरे वर्स्ट सिचुएशन में नो वन वॉज बाय माई साइड except divine was there with me every step of the way, even when I was not holding faith, even when I was doubting God was still there, even when I was angry, hating, crying, cursing on God, then also God was there silently, and you feel so much of gratitude for divine, and then there is a showering of grace. That's when you experience divine union. That's when you become one with divine, knowing and understanding that you hold this beautiful स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन यू विच इज़ बियॉन्ड योर फिजिकल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जब आप अपने इंडिविजुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे डियर फेमिनिन, आपके मैस्कुलिन को भी इंडिविजुअली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे चलना है, खुद को रिकॉग्नाइज करना है, खुद को रियलाइज करना है, डिवाइन से यूनियन में आना है, और फिर बाद में फिजिकल यूनियन होता है, राइट। तो दैट इज़ वाई दिस इज हैपनिंग, एंड दिस 11 पोर्टल एंड लुक सच massive, like this is intense energy that I'm picking up on। आपको सुबह सुबह आप उठ रहे होंगे तो आपको बॉडी एक्स हो रहे होंगे, फुल बैक में एक हो रहा होगा, आप में से कोई लोगों को हेड एक हो रहा है या हेड में प्रेशर महसूस हो रहा है, बिना बात के चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, भूख नहीं लगना, या आप में से कुछ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, स्पेशली मीठे खाने का मन कर रहा होगा, पैरों में सूजन होना, पैरों में दर्द होना, also some of you might be having blurry vision at this point of time, right? So बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, these are high powered energies that we are receiving at this moment, and this is all leading up towards the 11/11 portal, right? मीनाक्षी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, समटाइम यू से कि ट्विन फ्लेम्स कभी कभी यूनियन में नहीं आते, तो उस टाइम हम अगर किसी को चूज़ करते हैं तो क्या वो रॉन्ग मूविंग ऑन इन आर लाइफ, इज़ दैट रॉन्ग? जस्ट अ बिट कन्फ्यूज। आई नेवर से दैट कि कभी कभी यूनियन में नहीं आते। सी, यूनियन में आप तब नहीं आओगे जब आप यूनियन टाइमलाइन चूज़ नहीं कर रहे हो। इन दिस पॉइंट मीनाक्षी जब आप मेंशन कर रहे हो कि अगर यूनियन में नहीं आना है एंड इफ आई एम चूजिंग समवन एल्स, तो क्या वो गलत है? सही गलत तो कुछ है ही नहीं, राइट? ये स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जब आप जानने लगते हैं तो आपको पता रहता है कि इट्स बियॉन्ड ड्यूअलिटी, सही गलत, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये भेदभाव सब मिट जाते हैं। वो उस रेल्म में 5D में ये ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू मूव बियॉन्ड सही गलत। You have to understand what do you want to create for myself, what do I want to create for myself? Do I want union with my divine counterpart? If yes, if you say yes, the moment you choose union timeline, God is going to make that for you, right? All possibilities exist in space time. That's what I always say on my lives, right? ये आपने शायद हो सकता है कोई दूसरे वीडियो में सुना हो कि कभी कभी यूनियन में नहीं आते कभी कभी क्योंकि वो खुद ही यूनियन चूज नहीं कर रहे। तो गॉड भी बोलते हैं ओके, यूनिवर्स कहती है तथास्तु, तुमने यूनियन नहीं मांगा, तुमको यूनियन नहीं मिलेगा, राइट? बट आप यूनियन मांग रहे हो, आप यूनियन की तरफ काम कर रहे हो, आप खुद पे काम कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हो, आप ईश्वर में विश्वास रख रहे हो, आप समर्पण भाव में हो, आप कॉन्शियसली यू आर अवेयर ऑफ योर मेंटल पैटर्न्स। जब आप साक्षी भाव से अपने रोज़मर्रा की जो जीवन है उसमें सारी चीज़ों का अच्छे से आंकलन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली अलाइनिंग विथ यूनियन। फिजिकल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ में ना आए, राइट? यू आर बाउंड टू कम, बट येस, इन अ सिचुएशन वेर इन यू डोंट वॉन्ट यूनियन, यू हैव फ्री विल, राइट? आपको यूनियन नहीं चाहिए, आप कोई अन्य टाइमलाइन चूज कर रहे हैं जिसमें आपको शायद कोई सोलमेट चूज करना है, कोई हायर लेवल का सोलमेट चूज करना है, आप उनके साथ भी आ सकते हैं, राइट? बट इफ यू आर ऑन अ ट्रू ट्विन फ्लेम पाथ, आप पूरी तरीके से उस हायर सोलमेट के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस लाइन व्हेन आई से आई एम हेल्पिंग यू सेव योर टाइम, आई एम नॉट पुशिंग यू इनटू इल्यूजन्स, आई एम सेविंग यू फ्रॉम द इल्यूजन दैट यू आर गोइंग टू थ्रो योरसेल्फ इन, राइट? तो इस चीज को सोच के कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और के साथ खुश हो जाऊंगी, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ में नहीं रह पा रहे हैं।
आप अगर सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में नहीं रह पाएंगे, आप एकांत में नहीं रह पा रहे हैं, तो आप किसी और के साथ कैसे रह पाएंगे, राइट? अभी आपको अलग किया गया है, आपको सेपरेट किया गया ताकि आप अपने ऊपर काम करें एंड अपनी हीलिंग पे काम करें, राइट? बिकम अ बेटर वर्जन देन वॉट यू वर येस्टरडे, right? And when you do that, you automatically become a person who is automatically aligned with receiving their divine counterparts love, right? ना कि किसी और अन्य व्यक्ति को पकड़ के चूज करके, नहीं हम खुश रह लेंगे, हम अच्छे से रह लेंगे, I'll marry some other person. What if you marry this person and still you cannot forget your divine counterpart? What if you continually start seeing signs even post your marriage? Isn't that cheating? कि आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप अगले व्यक्ति जिसके साथ में आप अपनी लाइफ जी रहे हैं उसके साथ भी पूरी तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, आप अपना 100% जहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए. दैट इज़ वॉट आई बिलीव. एटलीस्ट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लव, बट आई बिलीव कि वॉट एवर यू गेट इन टू, यू शुड ट्राई टू गिव 100%. इट इज़ ईदर 100% और नथिंग. तो जिस मोमेंट आपने अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को चूज कर लिया, नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू चूज यूनियन, आई एम गोइंग टू चूज वननेस, आई एम गोइंग टू चूज लेइंग फेथ इन डिवाइन, क्योंकि डिवाइन ने आके आपको आपका पर्सन मिलाया है. और अगर आप किसी और सोलमेट को चूज कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट सेइंग कि ठीक है, जो आपने मेरे लिए डिसाइड किया था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है. तो डिवाइन भी कहता है अच्छा ठीक है, कर लो फिर अपने मन की. राइट? सो 8 to 10 हो रहा है एंड ऑल्सो वॉज एडमिटेड एंड डायग्नोज विथ sinusitis. How to overcome these pains? Look at this. The illness that you mentioned, or I will not call it illness, it is a disease. The disease that you mentioned is with regards to your third eye. Sinusitis मतलब क्या? थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है. अब चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी ने क्या है, वो एनर्जी को डेंसिफाई कर दिया एंड दैट इज नाउ टेकिंग फॉर्म ऑफ दिस एलिमेंट, राइट? हाउ डू यू हील दिस? बाय लर्निंग टू सी डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट यू आर चूजिंग, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट? व्हेन यू आर ओपनिंग योरसेल्फ अप टू अ न्यू विजन, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू बिलीफ, तो आप ओपन हैं चेंज के लिए. You are ready to change yourself. You are ready to realign. If God brings you a change in your life, you are ready to realign with it, right? So when you start welcoming different perspectives, newer perspectives that do not match your belief system, आपके belief system में set नहीं होगा, पर कोई चीज़ सामने आ रही है और आप उसे बैठ के ठीक तरीके से सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, राइट? अगर आप वो पर्सपेक्टिव वेलकम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए आप रेडी हैं, तो फिर यू आर अलाइनिंग विथ व्हाट गॉड वांट्स टू ब्रिंग यू टू, एंड इन दैट यू आर गोइंग टू हील. ऑटोमेटिकली ये सब हो जाएगा. ठीक है? अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इसलिए आपको सिनुसाइटिस वगैरह हो रहा है. ट्विन के साथ डेस्टिन्ड है कनेक्शन दी. आपने बोला कि हम चीटिंग कर रहे हैं, अगर जानते बूझते हम किसी और को चूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारा हाफ पार्ट भी चीटिंग कर रहा है ना खुद के साथ. एग्जैक्टली मिररिंग है, मिररिंग हो रही है ना. आपके काउंटर पार्ट चीट कर रहे हैं, आप भी चीट करो, आप चीट करो, आपके काउंटर पार्ट चीट करेंगे. क्यों चीट कर रहे हो? वाई इज दिस चीटिंग देयर? आप दोनों सोच रहे हो कि दोनों को एक दूसरे से कोई बेहतर मिल जाएगा. गॉड जो सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, इसीलिए चीटिंग की बात आती है. ठीक है? तो आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें, खुद से लॉयल रहें, डिवाइन से लॉयल रहें, अपने पर्सन से लॉयल रहें, चाहे वो जो मर्जी कर रहे हो. व्हाट इज अनकंडीशनल लव? ये तो कंडीशन हो गया ना. तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे से शादी कर रहे हो, तो ही मैं तुमको अपना प्यार दूंगी, तभी मैं अपना विश्वास दूंगी, वरना नहीं दूंगी. कंडीशन हो गया ना वो. अनकंडीशनल लव थोड़ी ना हुआ है. अनकंडीशनल लव इज अनकंडीशनल, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फिजिकल सर्कमस्टेंस और सिचुएशन. लोग पागल बोलते हैं. दुनिया ने कैस को पागल बोला था. क्यों पागल बोला था? बिकॉज ही वॉज सो डिवोटेड. ही वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशन दैट ही हैड टुवर्ड्स लैला. इतना कि ही लॉस्ट हिज सैनिटी.
ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज सैनिटी। लोग बोलते थे कि ये बिल्कुल ही, ये तो मजनू, इसीलिए उनको फिर नाम दिया गया, मजनून हो गए, राइट। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं, तुम मेरे पास में आओगे, तुम सॉरी बोलोगे, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, तभी मैं तुमको प्यार दूंगी, ये तो यार, ये तो लेन देन हो गया है, तो बाटर सिस्टम हो गया है। वॉट इज़ अनकंडीशनल लव? आपके पर्सन जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी लाइफ में कुछ चूज़ कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के चूज़ कर रहे होंगे ना, तो आप अपनी चॉइस, उनकी चॉइसेस को ट्रस्ट करिए, उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करिए, तब जाके वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, राइट। और अगर ना भी दें, मान लो अगर वो कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है, योर पर्सन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट गिविंग यू एनी सिंगल डैम थिंग, हाउ डज इट मैटर, राइट। जब आप एक व्यक्ति को अपने प्रेम का पात्र बना लेते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से उसको माने, तो आप डिवाइन को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज वॉट दिस जर्नी इज अबाउट, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फेथ, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव, योर डिवोशन। उसमें उस बंदे का नहीं है कुछ, उसमें आप ही का है, उसमें आप ही का फायदा है, राइट। आर वी फोर्सिंग लव? Are we forcing love? Who is forcing love? What do you mean by forcing love? Can love be forced? हाँ, दी अनकंडीशनल लव करना है, करना नहीं है, वो आपका ट्रू डिवाइन नेचर है, वो ऑटोमेटिकली आता है। बट हम अपने ह्यूमन माइंड में हम लेन देन, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, ये सब चीज़ों को लेकर होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद ही को भूल जाओ, राइट। बट इस स्पिरिचुअल जर्नी में वो सारी चीज़ें जो डिवाइन से अलाइंड हैं, वो ऑटोमेटिकली चोजन है, वो ऑटोमेटिकली अच्छी हैं आपके लिए। हाँ, दी अनकंडीशनल लव करना है, पर कोई गलत करे फिर वो हमें अलाउ करना है। सी दैट आंसर यू नो विद इन योर सेल्फ। कल को मैं तुम्हारे साथ में कोई गलती करती हूँ, या कोई मैं बहुत ही गलत कर जाऊँ, तुम्हें चीट कर दूँ, तुम्हें फरेब में डाल दूँ, तुम्हें फंसा दूँ कहीं पे, है ना, तुम्हारे ऊपर केस कर दूँ, कोर्ट केस कर दूँ, राइट। तो क्या तुम्हें वो अलाउ करना चाहिए? क्या तुम्हें वो अलाउ करना चाहिए? क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? क्या तुम्हारे में इतनी शक्ति होगी कि जो भी सिचुएशन हुई उसके पार देख सको, राइट। किसी और को इस सिचुएशन में रख दो, फिर देखो, फिर समझो। भाई अब तो कुछ सही गलत समझ नहीं आता, सब कुछ बनावटी लगता है अब। सही गलत तो है ही नहीं, सही गलत क्या है? यू नीड टू गो बियॉन्ड सही गलत। इट सिंपली इज, एवरीथिंग सिंपली इज। जो जैसा है उसको सामने वैसा ही लें, उसमें कुछ अपना ऐड ना करके चीज़ों को वैसे ही देखो जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, ये व्यक्ति ने गलती करी, ओके, आई फॉरगिव देम, आई एक्सटेंड फॉरगिवनेस टुवर्ड्स देम, बट लेट मी जस्ट फोकस ऑन पीपल हु आर एक्चुअली ऑन दिस पाथ, हु आर अलाइंड विथ गॉड। जब ये रेडी होंगे तब ये आ जाएंगे, राइट। बट व्हेन whoever comes in our life is our reflection and our mirror, it's difficult at times to understand who is the one. They are you. They are you. It's like it's your extension. You're watching this live, you're watching me, but मैं सिर्फ आपके conscious awareness में एक appearance हूँ. I'm simply seeming to appear, right? But it's a voice that's there already within you. It's your soul's voice, right? It's already there within you. So in essence, you are not separate from me, you are not separate from anything that you experience in your reality. That is what this journey also teaches us. तभी आपको इतना क्लोजनेस फील होता है ना अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ में। बट द मेन थिंग इज द लव दैट यू फील टुवर्ड्स योर डिवाइन काउंटरपार्ट। उन्होंने सारी जहाँ की सारी खराब चीज़ें करी हैं, ठीक है, मान लिया, उनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ रही हैं, मान लिया, उसके बावजूद भी आप ये लव फील करते हैं उनके लिए। इट्स अ मैसिव काइंड ऑफ अ लव। वाई? क्योंकि वो यहाँ आए हैं आपको अनकंडीशनल लव की ग्रेविटी समझाने, आपको वननेस सिखाने, दैट वी आर ऑल डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम सोर्स ऑफ लाइट, वी आर एमिनेटिंग फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सो द अंडरलाइंग ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इज वननेस, इज गॉड, सोर्स, लव, डिवाइन एनर्जी, राइट। और ये जर्नी जो है, ये
मैं क्या बोल रही थी, भूल ही गई। पता नहीं यार, डिवाइन फेमिनिन नहीं लगता मेरे लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मान लेते हैं कि आपके पर्सन ने बहुत गलतियां करी हैं, बुरी से बुरी बदसलूकी करी आपके साथ में, ठीक है, बहुत ही बुरा किया है, बट फिर भी आप ये लव फील करते हैं उनके लिए। क्यों फील करते हैं? क्योंकि दिस इज अ जर्नी अबाउट लर्निंग अनकंडीशनल लव, and not only towards the person, towards yourself also, towards divine also, right? And that is how you come into okayness, जैसे बोलते हैं ना, कई नॉन ड्यूअल टीचर्स हैं वो okayness की बात करते हैं या beingness की बात करते हैं कि when you're just being, आप जैसा जो सामने आपको दिख रहा है आप केवल देख रहे हैं साक्षी भाव से, मूक भाव से, यू आर जस्ट क्वाइट, यू आर साइलेंट, यू आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शंस, आप रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो, आप केवल चुपचाप आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, राइट? एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर अलाउिंग इट टू अनफोल्ड। आपके अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना, जो है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय मेरे हाथ से वो ना निकल जाए, हाय मेरा पर्सन कहीं और ना भाग जाए, जाने दो उसको, घूमने दो, टहलने दो, थोड़ा इधर उधर पूरा संसार देखने दो। आपने देख लिया, आपको पता है कि आप इस लव को पार नहीं कर पाए हैं, आप इस व्यक्ति को अपने मन से, अपने दिल से, अपने जहन से नहीं निकाल पाए। लेट देम ऑल्सो ट्राई, वो ट्राई करेंगे तभी तो उनको एक्सपीरियंस आएगा, तभी तो समझ में आएगा कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे भी नहीं भुलाया जा रहा है, मेरी फेमिनिन मेरे जहन से नहीं जा रही है, शी इज़ नॉट गोइंग देयर। एवरी डे एंड नाइट, मॉर्निंग नून नाइट, आई एम सीइंग हर इमेज इन फ्रंट ऑफ माई आईज। उनका नाम मेरे लबों पे रहता है, कई बार मेरे लबों से निकल भी जाता है गलत जगह में, गलत समय में, बट वो रहता है, वो जहन में चलता ही रहता है, मेरी फेमिनिन की बात मेरे माइंड में घूमती ही रहती है। एंड वो कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम सिखाता है, वो टाइम कंफर्म करता है कि नहीं, देर इज़ this unique bond that I feel with my person and I'm here to live it, I'm here to experience it. ऐसा लगता है कि DF मुझ में नहीं है, मुझे कुछ रिसीव करने को मिलता ही नहीं है इन रिटर्न, राइट? तो नॉक्टर्न आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी देखनी है, वेयर आर यू होल्डिंग ऑन टू एक्सपेक्टेशंस, वेयर यू वांट टू रिसीव, कहीं ना कहीं आप जो चीज़ दे रहे हैं, कर रहे हैं लोगों के लिए, उसमें आपका कोई एक ऐसा भाव है जिसमें आप चाह रहे हैं कि यार वो भी मेरे लिए ऐसा करे, तब मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? एंड दैट इज़ क्रिएटिंग सफरिंग फॉर योर सेल्फ, क्योंकि नहीं होगा ना, कई बार ऐसा होगा जहाँ लोग केवल लेने के लिए रहते हैं, लेना लेना लेना, देना कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ में हो रहा है अभी कि पीपल सिंपली वॉन्ट टू जस्ट टेक 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 टेक, दे डोंट वॉन्ट टू गिव, दे डोंट वॉन्ट टू प्रोवाइड एनीथिंग इन रिटर्न, फॉरगेट अ सिंपल थैंक्स, ठीक है? तो वो ह्यूमन नेचर है, लेना 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 लेना, बट अगर यदि आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे ना कि यार मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, तो आप खुद के लिए सैडनेस, सफरिंग क्रिएट कर देते हो। ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आया, नहीं दिया, उसके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो नहीं दिया, राइट? सो ये अपने आप में देखें कि कहाँ एक्सचेंज ऑफर का एक कहीं बोर्ड है आपके दिमाग में वो कहाँ पे है, राइट? सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, leaf cutter ant we have, so this talks about community, this talks about hard work and teamwork, right? Collective efforts, army of life, ask for help, seek support, you are not alone. तो आपको अकेलापन लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि आप लोनली हैं इस जर्नी में और कोई नहीं है आपके साथ में, बट देर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल अराउंड यू, और रादर देर आर फोर्सेस फ्रॉम डिवाइन दैट आर रैलिंग टू योर सपोर्ट. Yoshi is saying the I love you. So yes, it's there, that help is always there, you simply need to ask for help, you simply need to ask for support, and ask this from divine. Who better than divine? आपको ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन से बेहतर आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है? आप में से कुछ बोलेंगे दी पर डिवाइन बात नहीं करते हैं, तो हमें समझ कैसे आएगा? आएगा समझ, आप केवल शांत तो रहिए, थोड़े वक्त शांत रहिए, जिप लगाइए, यहाँ पे जिप लगाइए, बैठिए आंखें बंद करके, आएंगे जवाब, सारे जवाब आएंगे,
पूछिए तो सही, कनेक्ट तो करिए, ट्रस्ट तो करिए, राइट। एंड यू आर नॉट अलोन, यू आर नेवर अलोन। लोनलीनेस फील हो रहा होगा आपको आज, अकेलापन महसूस होना, दैट डिवाइन इज ऑलवेज देयर विथ यू, यू आर नेवर अलोन। आज तो लग रहा है ब्रो। Chameleon, soul tribe. It is safe to be seen. Again, soul tribe. It is safe to be seen. Why are you hiding your light? Why are you hiding your true colors? आप में बहुत से टैलेंट्स हैं, आप में बहुत सी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपका नेचर हो सकता है आर्टिस्टिक, हो सकता है आपको कलर्स बहुत पसंद हो सकता है यू आर मल्टी फैसेटेड, आपको फोटोग्राफी का भी शौक है, आप एक आर्टिस्ट भी हो, आपको सोइंग बहुत अच्छी आती है, आप एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हो, मे बी यू हैव दोज एबिलिटीज, राइट। तो सबको मर्ज करके प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ यूनिक वे, देर इज़ अ यूनिक एसेंस अबाउट यू एंड यू नीड टू शो योर सेल्फ। यू नो, कभी कभार हो सकता है पास में आपको जजमेंट मिला हो कि आप बहुत ज़्यादा हो, यू आर टू मच, यू आर टू वियर्ड, आपको यू नीड टू टोन डाउन अ लिटिल बिट, यू आर ओवरवेलमिंग पीपल, ऐसे सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी जिस वजह से आपने अपनी लाइट को डिम कर लिया, right? But you are here to be seen, you are here to share your unique essence, your unique soul energy with others, and it's safe to be seen, right? So connect with your soul tribe. Your soul tribe is waiting for you, your soul tribe is waiting for you to show up, right? There are many others who can benefit from you, they can look up to you and take inspiration from you, right? Polar bear, nurture. Oh my god, I saw polar bear in the morning which looked exactly like this. What? Weird. But polar bear aa raha hai, there's this nurturing capacity that is coming in. We are being asked to allow anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. There are many worries coming in, dear feminine, especially this is feminine energy. And this bear is actually a sign of masculine, DM का sign है bear, और यहाँ पोलर बेयर है। तो आप देखिए आर्टिक में कितनी ठंड होती है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड, इट्स फ्रिजिड आउट देयर, है ना। तो ये बेयर आ रहा है जोर से आपको, आपके मैस्कुलिन आ रहा है आपको हग करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको रेज करने के लिए। आज आप बहुत लो फील कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम फीलिंग दैट द मैस्कुलिन रियली वांट्स टू कम डाउन टू यू एंड टू लिफ्ट यू अप एंड टू गिव यू अ बिग हग। इट्स लाइक लिसन, आई एम हियर फॉर यू, राइट। सो कॉल इन द एनर्जी ऑफ योर मैस्कुलिन। आप हो सकता है बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, बहुत दुखी हो उनके व्यवहार से, वो आपको इग्नोर करें, उससे भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, जस्ट क्लोज योर आईज, सी योर मैस्कुलिन सिटिंग बिसाइड यू इन साइलेंस, राइट। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज एंड सी देम, राइट। आप भले कोल्ड हैं, आप भले अपने मैस्कुलिन की तरफ नहीं देख रहे, बट वो आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको सपोर्ट देने। वो चाहते हैं यू नो कि मेरी फेमिनिन मुझे बुलाए, मेरी फेमिनिन मुझसे हेल्प मांगे, राइट। दिस इज़ ऑल एनर्जेटिकली ऑफ कोर्स। तो ये आप आज ट्राई कर सकते हैं। तो आपके मैस्कुलिन्स आपकी वरीज जो हैं ईज करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग दैट यू आर वरिड। आज से बोलो आई एम इनफ, आई एम पावरफुल, पॉजिटिव एनर्जी, राइट। आकाश, योर guidance is divinely guided, right? So this is again this energy of divine union, right? तो आप, जैसे मैंने बोला ना कि जो भी आंसर्स हैं आप ही के अंदर हैं। यू सिंपली नीड टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम, that moment of silence, that moment of stillness to allow the answers to flow into you like a waterfall above your head. Just close your eyes and imagine a beautiful flood, a beautiful stream of divine white light, pure white light flowing in through your crown chakra towards your head. And वो सारी चीज़ें जो अभी आपको जानने की ज़रूरत है, आपके गाइड्स आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, डिवाइन आप तक सेंड कर ही रहे हैं, बट हम अपने माइंड चैटर में, जब हम अपने माइंड में होते हैं, अपनी वरी में होते हैं, तो हम ये सब गाइडेंसेस जो हैं सुन नहीं पाते हैं। इसीलिए हमसे कहा जा रहा है कि वी नीड टू कनेक्ट विद आवर इंट्यूशन, वी नीड टू एक्टिवेट आवर इंट्यूशन एंड टू लिसन क्लोजली सो दैट वी कैन अलाइन विथ आवर नॉर्थ स्टार। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स, ये एनर्जी है पिछले 2-3 दिनों से आ रही है कि जो पास्ट सोल पैटर्न्स हैं, या जो कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या पास्ट लाइव्स का जो पेन है, या पास्ट लाइफ के जो लोअर कर्मास हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं दोनों तरफ से, फेमिनिन की तरफ से भी एंड मैस्कुलिन की तरफ से भी रिलीज़ हो रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, प्लीज़ फेस डिवाइन। जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, लुक टुवर्ड्स डिवाइन एंड देन देयरिन यू विल
रिसीव द नेक्स्ट स्टेप. क्या नेक्स्ट स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है, आपको साफ साफ नज़र आएगा. राइट. Tanumay, just close my eyes. I saw white light man rather than any face. Is that okay? I don't want to put any face. Who is it? It's okay. It's okay. Do not think from your mind. Okay. Just close your eyes. Have a blank slate and then see whatever comes in. कभी कभार क्या होता है, हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा अभी भी जो माइंड हमारी पिक्चर क्रिएट करना चाहता है वही पिक्चर फॉर्म हो रही है. राइट. तो लेट लूज ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशंस. आने दो, जो भी होने दो, जो भी आपको दिख रहा है, चाहे फेसलेस है, चाहे फेस है, जिसका भी फेस हो, जो भी आना चाहे. राइट. वट एवर नीड्स टू कम अक्रॉस, इट्स ओके. यू ऑलरेडी आर. दो जन बोल रहे हैं मैं मैस्कुलिन में हूँ. मैस्कुलिन भी हो भाई, फेमिनिन भी हो सकता है मीटर ऊपर नीचे है. ठीक है, यही होता है. ये दो बैटरी हैं, प्लस और माइनस की, दोनों अपने अंदर फिट हैं, मैस्कुलिन की और फेमिनिन की. राइट. बट क्या होता है, हम बैलेंस में नहीं होते. मैस्कुलिन एनर्जी इज नॉट इन बैलेंस विद फेमिनिन. कभी कभार फेमिनिन हाई होती है, मैस्कुलिन बहुत लो हो जाती है. ठीक है, आपको रेस्ट करना है, आप निढल हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई आके मेरे लिए सारे काम कर दे. एंड यू फील इंटेंसली क्रिएटिव. यू हैव सो मेनी आइडियाज़ कमिंग इन. आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं. राइट. तो उस टाइम आप अपने फेमिनिन में होते हैं. इंट्यूशन आपको बहुत क्लियरली आ रहा होता है. एनर्जी में आप बहुत हाई फील कर. एनर्जी मतलब यू सेंस एनर्जी इज क्वाइट हाईली. अब आप जब मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो जाती है, फेमिनिन लो हो जाती है, तब आप 3D से जुड़ जाते हो. जब आप फेमिनिन एनर्जी में होते हो तब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हो. जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा होते हो तो आप का जो फिजिकल वर्ल्ड से जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है. आप पैसे से रिलेटेड, घर बार, गाड़ी बंगला, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीज़ों में अब ज़्यादा आपका इंटरेस्ट चला जाता है. आप करने में आ जाते हो, कर्म योग में आ जाते हो. मतलब व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक इन ऑर्डर टू अर्न माई ब्रेड, है ना. फिर आपका एनालिटिकल प्रैक्टिकल माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको बाकी एनर्जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सब नहीं, उससे थोड़ा आप छूट जाते हो. राइट. तो हमें क्या करना है इस जर्नी पे, दोनों को बैलेंस में लेकर आना. यदि यूं है या यूं है, बात एक ही है. राइट. अगर यूं है, अगर आप अभी अपने मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हो तो आपके पर्सन के पास में आपकी फेमिनिन पोलैरिटी होगी. राइट. तो आपको आना है बैलेंस में, कि जब आप वर्ल्ड में जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, आप अपना कर्म भी कर रहे हैं, आप अपनी रोटी भी कमा रहे हैं, आप अपना पैसा भी बटोर रहे हैं, आप अच्छा भी कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं लोगों को. ऑल द वाइल यू आर कनेक्टेड विथ योर स्पिरिचुअल रेल्म. ऑल द वाइल यू आर कनेक्टेड विथ योर पर्सन. ऑल द वाइल यू आर हार्ट सेंटर्ड इन योर नोइंग कि हाँ, यूनियन आएगा, जब भी होना होगा, इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड इन द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग व्हेन गॉड हैज़ प्लान्ड दैट फॉर मी. एंड आई ट्रस्ट दैट, आई बिलीव दैट. I'm not running away from my person. I'm not running away from facing myself. Right? जब भी आप कोई चीज़ से भागने लगते हैं, आप वो चीज़ बन जाते हैं. ये याद रखिएगा. What you resist, you become. जिस भी चीज़ से मैं भागूंगी, मैं वही चीज़ बन जाऊंगी. राइट. मान लो आपके माइंड में कोई डर है, ठीक है, कोई चीज़ का डर है, तो धीरे धीरे करके ना, अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे, आप वही चीज़ बनना शुरू हो जाओगे. राइट. वो रूप बहुत ही भयावह बन जाता है. Right, so we don't want that. We are here on this journey to balance out our both polarities. So it doesn't matter आप masculine में हो, feminine में हो, doesn't matter. ठीक है. कोई दिन होता है नेचुरली, हम कोई दिन ज़्यादा feminine फील करते हैं, कोई दिन ज़्यादा masculine फील करते हैं. राइट. दिमाग ही चटोरा है, सब बवाल मचाता है. यस, इंट्यूशन है बट क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी कम हो जाती है. राइट. So look at this. So 1111 portal, this is the age of light, this is the age of Aquarius. age of light मतलब क्या, it's another word for age of Aquarius. और ये बहुत जल्दी, मतलब इन दिनों में प्लूटो जो है Aquarius में शिफ्ट कर रहा है, कैप्रिकॉर्न से हट के Aquarius में शिफ्ट कर रहा है. दैट इज वाई यू फीलिंग ऑल ऑफ दीज इनसेन चेंजेस एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पे बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं. वी आर स्टेपिंग इनटू द एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इनटू द एज ऑफ एक्वेरियस, इनटू द चेंज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अपलिफ्टमेंट. पूरा जो कॉन्शियस कलेक्टिव है वो अपराइजिंग होने वाला है उसका. राइट. एंड नो डाउट जब हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है तो पुराने स्ट्रक्चर्स, पुराने बिलीव्स, पुराने गवर्नमेंट्स वो क्रम्बल होंगे ही होंगे. पुराने फैमिली सिस्टम्स भी, इनफैक्ट आप में कोई
पेट्रियार्कल या अनबैलेंस्ड फैमिली सिस्टम होगा, नेगेटिव फैमिली सिस्टम होगा, वो भी क्रम्बल होगा, क्रश होगा, ब्रेक होगा, सो दैट समथिंग न्यू कैन बी क्रिएटेड इन दैट प्लेस. यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स. तो अगर आपको आज फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे बस के बाहर है, मुझसे तो झेला नहीं जा रहा, मुझसे तो सोचा ही नहीं जा रहा, मैं कैसे करूँगी हैंडल, प्लीज़ रिमेंबर कि आपके जितने भी पास्ट लाइफ टाइम्स रहे हैं अभी से पहले तक के, उन सब में आपने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग गेन करी है, आपने टैलेंट्स बटोरे हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करे हैं, और एज अ सोल यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू बी हियर नाउ इन दिस टाइम on this journey towards union with your divine counterpart, towards union with your God, right? Because you have prepared for this for lifetimes. आपने पता नहीं कितने lifetimes में तब ऑलरेडी कर चुके हो आपने तपस्या की है, पर वो तपस्या भंग हो गई कोई ना कोई कारण से. हो सकता है मेंटल इफ्लिक्शन की वजह से, हो सकता है एक लोअर इमोशनल एनर्जी की वजह से आपकी तपस्या भंग हो गई, हो सकता है आपने एक रॉन्ग एक्शन परफॉर्म कर दिया या एक रॉन्ग फिजिकल कर्मा परफॉर्म कर दिया, आप टेम्पटेशन में आ गए, आप ल्योर हो गए, किसी की बात में आ गए, आपने झूठ बोल दिया, आपने चोरी चकारी कर दी, राइट? कोई ना कोई ऐसा लोअर कर्मा हुआ जिसकी वजह से आपकी तपस्या भंग हुई है, और आप वापस से वही चीज़ जो है अब यहाँ पे वापस से यू आर हियर स्टार्टिंग योर कार फ्रॉम दैट पॉइंट. वी आर सो ब्लेस्ड राइट नाउ, क्योंकि कई सारे नए सोल्स भी हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया है, आपने पिछले लाइफ टाइम्स में मेहनत की है, मुशक्क़त की है, यू हैव ट्राइड टू सीक डिवाइन. दैट इज़ वाई एवरीथिंग राइट नाउ दैट इज़ कमिंग टू यू सो ईजीली, सो फ्री फ्लोइंगली. It's happening because you have already trained yourself since past so many lifetimes, right? तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं. तो अगर आपको अभी लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, प्लीज़ रिमाइंड योरसेल्फ. जैसे ही वो थॉट है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, आई हैव डन दिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस एंड आई एम हियर टू अपलिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम हियर. मुझे उतना ही दिया जाएगा जितना सहने की मुझ में क्षमता होगी, जितना सहने की मुझ में काबिलियत होगी. जितना मैं सह सकती हूँ उससे ज़्यादा नहीं देंगे डिवाइन आपको, ट्रस्ट मी, राइट? जितना जो आप झेल सकें, जो आप देख सकें, जिस चीज़ को आप समझ के आगे बढ़ सकें, वही चीज़ आपको दी जाएगी, राइट? सो कैरी ऑन जानी, कैरी फॉरवर्ड, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग अक्रॉस फॉर the collective energetic shift for 11/11 portal. I hope this reading resonated with you. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around.